Okay, so the question is about the distance upon time. हाँ बोलो नताशा, you were saying. तो what do I do अभी इसके आगे क्या करूँ? Is equals to 100 meter per minute. पहले हम substitute करते हैं, ठीक है? 500 upon 5 which is 100 meters per minute. Okay, that would be your speed. Now speed along path, this was A. Along A. Now what is it along B? Along B. Again, we'll substitute it here. तो अभी बोलो, कोई और किया है किसी ने? चलो बोलो, नताशा बोलो अगर तुम्हारा रेडी है तो. Distance upon time. हाँ. Speed path B distance upon time is equals to बोलो everything. 1200 meters upon 24 minutes. Okay, 24 times time. Okay. Here the D was 1200 and T was 24 minutes. So we have got here, right? तो अभी बताओ 24 कितनी times करूँ? 50. 5 times. 5 times. हाँ 5 times is 120 and 0. So it will be 50 meters per minute. Right? Next क्या क्वेश्चन था? एवरेज कितना हुआ स्पीड? तो जब अकेले जा रही थी तो बहुत फास्ट चल रही थी, बाद में फ्रेंड मिल गई तो धीरे धीरे चलने लगी है ना. पहले अच्छा 100 की स्पीड में चल रही थी, अभी फ्रेंड मिल गई तो 50 हो गई स्पीड. अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी? हाउ डू यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? Total distance upon total time. Total distance upon total time. Yeah. तो कितना total distance upon total time? Okay. So it will be, बोलो कितना है distance? 500 plus 1200 upon 29 ना? तो कितना होगा ये? 1700 upon 29 which is equal to, करो कैलकुलेट. 56 point. हाँ, टेक्स्ट बुक में तो दिया है रेडीमेड 58.6 मीटर्स पर मिनट. आपने कैलकुलेट किया तो भी आपको यही मिलेगा. Yes, miss. ठीक है, आप ये दोनों को ऐड मत करना डायरेक्ट, 100 plus 50 और डिवाइड बाय 2 मत करो, ठीक है? Husaina, did you say something? I couldn't hear you. Huh? Okay, so आगे जाते हैं. What was the last thing? What is Sheetal's velocity? वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, उसका होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So what was the displacement? How much was the distance between her house and school? Yesterday we did, that was 1300 upon time which she took to go from there and there. 29 minutes लगे ना उसको, पहले 5 minutes यहाँ, फिर 24 minutes वहाँ, तो 29 minutes में पहुँचे है वो. So what is the velocity? Will be the velocity will be the calculation of this 1300 upon 29 which is 44.83 meters per minute. मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि I don't cover the board. That is the first part, that is the second part, this is the third part, this is the fourth part. ठीक है? Fine, you can take this down if you have not done it, otherwise we'll go ahead.
Please take it down. Fine. Ifzal has joined. Again, he is not able to connect Afan. Cyber, take the attendance. Huh? Okay. There is one new student, two new students today, okay? One is Zahir and one is Ifzal. And again, Zahir was disconnected. But you write their names. Okay. So now we go ahead. कल हमने acceleration के भी 3 types किए थे. Zero acceleration, positive acceleration, and negative acceleration. So now an object, if it is in a uniform motion and covers equal distances and equal time intervals, the graph is given by a straight line. So that is uniform motion. And there is also a non-uniform motion. अगर uniform motion मतलब क्या non? I will first give you the definition and then I will explain it to you. Okay. So first to write the definition for uniform motion. So right, define uniform motion. An object is said to be in uniform motion. An object is said to be in uniform motion an object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal time. If it covers equal distances in equal time. और एक पेंसिल और स्केल लेकर नीटली एक टेबल बनाओ. पेंसिल और स्केल लेकर नीटली एक टेबल बनाओ. जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे.
अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आई थिंक नाउ इफ्साल इज आल्सो जॉइंड एंड आई होप यू कैन हियर। उनका शायद स्पीकर बंद है, बट एनीवेज so you make 2 columns and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rows, 9 rows बनाओ, ये 1 और इसके अलावा और 8 rows। ठीक है, and then write 2 columns, you have time and distance। The time will be in seconds। अगर अभी भी आपको आवाज मेरी नहीं आई ना, मुझे बोलना। अगर मेरा ये हेडफोन अगर इससे डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे नहीं समझेगा। मीटर्स। सो नाउ द इन जीरो टाइम, नो जीरो टाइम जीरो डिस्टेंस, ठीक है। और ये हम बढ़ाते जाते हैं टाइम सेकेंड्स वाइज, ठीक है। तो उसके हिसाब से द डिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। 15 meters in 20 minutes, how much? 30, ये डबल हो रहा है 30, फिर अनदर 10, उसके बाद ये 40, 15 का डिफरेंस होते जा रहा है। ठीक है, so that is what we get over here। एक रफ क्विकली ऐसे रफ ग्राफ बनाए और उसके अंदर भी आप इसको मार्क करो। एक्स एक्सिस वी विल टेक एज टाइम इन सेकेंड्स, and y axis we will take the distance in meters। Distance in meters, ये आपने कॉपी किया? So if we start with 0, which is at the origin, time which will go over here, we have 10 seconds, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and so on. And on this side, as we have also got it here, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, and so on. अब उसके हिसाब से हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। 10 विल बी ओवर हियर विथ 15, 20 विथ हियर विथ 30, 45, it is going like a straight line, isn't it? You can extend this line over here, और इन सर्कल्स को आपको सर्कल करना है ऐसे, जिसके ऊपर आपने प्लॉट किया है।
So this is your distance, time graph for uniform motion. अभी ये मत सोचना कि ये टॉपिक इसमें नहीं आएगा या वो टॉपिक इसमें नहीं आएगा, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, किसी चीज को आपको लाइटली लेना नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, मैथ्स में भी आप ये सब सीखते हो, प्लस नाउ फिजिक्स के हिसाब से भी हमें ये सीखना है, अगर ये हम सीखेंगे दिस इज द बेस, तो आगे की चीजें हमें इजी लगेगी, है ना। अगर ये बहुत इजी है इसलिए छोड़ दिया तो आगे का आपको कैसे समझेगा, है ना। तो वी हैव टू डू इट रेगुलरली, ऑल स्मॉल थिंग्स विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। हो सकता ये टेस्ट में ना आए तो इट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट, आगे के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ बेस, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग ओवर हियर। तो प्लीज ड्रॉ दिस फास्ट, और मैं आपको एक होमवर्क के लिए फिर दूंगी। ये टेबल ड्रॉ करके हो गया आपका, एवरीबडी इज ड्रॉन दिस टेबल। तो होमवर्क वाला मैं टेबल ना यहाँ पर लिखती हूँ, तो या बाद में करो या अभी करो, होमवर्क वाला टेबल भी क्विकली ले लेना। It is very important that we do all this. और ये बनाने के बाद आप लिखो ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगेन यू टेक द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लो, एक्स एक्सिस पे आप टाइम इन सेकेंड्स लो। और अभी ये वाला हम रब नहीं करते, आप देख के बना रहे हो, बट इसका अलग ग्राफ बनेगा क्योंकि आपके जो है वैल्यूज अलग हैं, तो आप प्लॉट अलग करोगे, ठीक है। तो यू विल ड्रॉ इट फॉर होमवर्क। इट विल बी डिजायरेबल, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर करो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एक ग्राफ सा बना के उस पर बना दो, बट यू हैव टू डू दिस। ओके, एक अगर हो गया आपका ये वाला कॉपी करके ना, तो ये क्वेश्चन लिखने के पहले अगर स्टार्ट किया तो इट्स ओके, नहीं किया तो क्विकली एक डेफिनेशन लिखो ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, an object is said to be in non-uniform motion if an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances
unequal distances in equal time intervals. In equal time intervals. In equal time intervals. Okay. लिखा सबने? I'll repeat once more. नहीं ना? ओके तो अब जल्दी से ये क्विकली कॉपी करो क्योंकि अभी टाइम अप होने वाला है. देन वी विल सी टुमारो. हुसैना आई कांट सी यू बेटा एंड देयर इज नो स्केल इन दिस ग्राफ. मतलब अच्छा तुम लोग कॉपी करो, बाकी लोग अपना कॉपी करो. आई एम आंसरिंग हुसैना. क्विकली कॉपी करो. दिस लास्ट 1 or 2 minutes. Husaina, I'll call you up and talk to you. Don't worry. You can see the board clearly now. You copy the question. Because yeah, this topic gets over here with the two things, small things. फिर कल हम आगे वाला important topic start करने वाले हैं same chapter में से, velocity time graph वाला. Okay, Husaina, I will answer your question privately.